السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی چوتھی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 3 کلاس مکمل کر لی ہے۔ تیسری کلاس میں ہم لوگوں نے عربک زبان کے جو ورڈ ہیں، اس کے جو کلمہ ہیں، ان کے قسموں کو، اسی کے ساتھ پھر جو ناؤن کی 2 قسمیں تھیں، معرفہ اور نکرہ، یعنی ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، ان کے بارے میں تفصیل سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اب آج کی کلاس میں ہمارے جو ناؤنس ہیں ان کی عربک زبان میں 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک میسکولن اور دوسرے فیمینن۔ میسکولن جس کو ہم مذکر کہتے ہیں، اردو میں بھی مذکر کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو دوسری قسم ہے فیمینن، اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربک زبان میں مذکر اور مؤنث دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ عربک زبان کے جو ورڈ ہیں ان کی چینجنگ، ان کی تبدیلی فاعل کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ عربک زبان کے 14 صیغے آتے ہیں اور ان کو ہم اس کے فاعل کے اعتبار سے، اگر فاعل مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر، مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے عربک زبان میں مذکر اور مؤنث کو جاننا، اس کی علامت کو جاننا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی کلاس آپ لوگوں کی عربک زبان کے مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہے۔ اب ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کچھ انفارمیشن ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی کلاس پی پی ٹی کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ریویژن کرنا چاہتے ہیں تو جو پی پی ٹی آپ کو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو فری میں اویلیبل کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارا ایک ٹیلی گرام چینل ہے، آفیشیل ٹیلی گرام چینل ہے۔ اس پہ کوئی اور دوسری چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ اس پہ ویڈیو کی لنک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو کلاس پڑھائی جاتی ہے، اس کی پی ڈی ایف آپ کو وہاں اویلیبل کرائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ٹیلی گرام چینل سے، جو نظام اکیڈمی 22 اس کی لنک ہے، اس کے نام سے ہے، اس سے آپ لوگ جڑ جائیں تاکہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے اور آپ پی ڈی ایف کے ساتھ اس کا ریویژن کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ لوگ لائک بھی کریں، کیونکہ کچھ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے متعلق کچھ آپ کا سجیشن ہے، کچھ آپ کا کمنٹ ہے تو وہ بھی دیجئے، اس میں سدھار کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ماڈرن عربک بہت سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سکھانے کے لیے ایسا کوئی ان کو چینل نہیں ملتا اور ایسے کوئی ٹیچر نہیں ہیں۔ تو یہی سب دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے شروع کی گئے یہ چینل، عربک زبان پڑھانے سکھانے کی یہ سیریز شروع کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو جو بھی ویڈیو نئی اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔
अब आगे हम लोग क्लास पे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इससे पहले हमने इसमें यानी नाउन के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल की है। अब नाउन यानी इसम की दो किस्में हैं। एक हमारा जो है जिसको हम मुज़क्कर कहते हैं, नंबर 2 पे है वो मुअन्नस। उर्दू ज़ुबान में भी मुज़क्कर और मुअन्नस ही इस्तेमाल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने नाउन हैं अक्सर वो हमारे नाउन्स वो मैस्कुलिन होते हैं, यानी वो मुज़क्कर होते हैं। कुछ ऐसे इसम हैं, कुछ ऐसी संज्ञा हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो फीमेल यानी मुअन्नस का कैरेक्टर रखते हैं। उनको हम मुअन्नस की यानी मैस्कुलिन की यानी फेमिनिन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सिस्टर, सिस्टर माने होता है बहन यानी उख्तुन। गर्ल लड़की के लिए इस्तेमाल होता है जिसको अरबिक ज़ुबान में बिंतुन कहते हैं। डॉटर यानी बेटी के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे हमारा वाइफ यानी बीवी के लिए यानी ज़ौजुन के लिए। आगे है ब्राइड। ब्राइड इंग्लिश लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है जो दुल्हन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़ौजा। यानी इसके लिए अरबिक ज़ुबान में एक लफ्ज़ आता है अरूस, ऐन रा वाव सीन। ये ब्राइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मदर यानी इसके लिए अरबिक ज़ुबान में उम्मुन का लफ्ज़ आता है। आंट हमारी इसको कहते हैं उर्दू ज़ुबान में चची, यानी जिसको आंट बहुत मशहूर है, अक्सर लोग आंटी बोलते हैं। उसके लिए भी ये भी हमारा जो है मुअन्नस के लिए इंग्लिश ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप देखेंगे अरबिक ज़ुबान के जो ऑब्जेक्टिव हैं जैसे ओल्ड, न्यू, इसमें कोई फेमिनिन और मैस्कुलिन नहीं है। सबके लिए भी इसकी सिफत कोई भी आए, इसका नाउन कुछ भी हो, ये दोनों के लिए ओल्ड या न्यू। जैसे कहा कि न्यू पेन, नई घड़ी, तो न्यू पेन, पेन यानी कलम, यानी नया पेन। तो इंग्लिश ज़ुबान में न्यू पेन भी कहेंगे और न्यू वॉच यानी नई घड़ी। लेकिन अरबिक ज़ुबान में न्यू के लिए जदीदुन आता है, लेकिन अगर सातुन के साथ यानी सातुन उसके साथ जदीदतुन आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश ज़ुबान की ये ख़ासियत है कि इंग्लिश ज़ुबान में जितने एडजेक्टिव हैं यानी जितने आपके मौसूफ हैं, विशेषण हैं, वो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए एक ही तरह के यूज़ होते हैं। लेकिन अरबिक ज़ुबान में मैस्कुलिन फेमिनिन जब उसको फेमिनिन बनाएंगे यानी मुअन्नस बनाएंगे तो उसमें हम तब्दीली करते हैं। और इसी के साथ अरबिक ज़ुबान में जो मैं आपका फेमिनिन है उसकी कुछ अलामत होती है। उस अलामत से हम पहचान सकते हैं कि वो हमारा फेमिनिन है, जिसके बारे में अब हम आगे स्लाइड में देखते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन की उमूमन 3 अलामतें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उनमें से नंबर 1 आती है अत्ता अल मुदव्वरा। ता मुदव्वरा को आप कह सकते हैं गोलता, जैसे कि ये दी हुई है गोलता। इसको ताए मरबूता भी कहा जाता है। अगर कोई मुज़क्कर इस्म है, मुज़क्कर लफ्ज़ है, ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा कलिमा है जो मुज़क्कर है, उसको अगर हम मुअन्नस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहली अलामत, पहला संकेत, पहला कायदा यह है
कि उसके आखिर में हम गोलता बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप मिसाल से समझिए, जैसे लिखा हुआ है तिफलुन। तिफलुन ए चाइल्ड यानी मेल बच्चे के लिए अरबिक ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे चाइल्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए चाइल्ड ही यूज़ करते हैं। लेकिन अरबिक ज़ुबान में अगर वो बच्चा मेल है तो उसके लिए हम तिफलुन कहेंगे, और अगर वो फीमेल है तो उसके लिए तिफलतुन, यानी लाम के आखिर में गोलता का हमने इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया, आखिर में बढ़ाया है। ए तिफलतुन ए फीमेल चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है इब्नुन। इब्नुन ये सन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसको अगर मुअन्नस बनाना चाहेंगे तो इसके आखिर में, नून के आखिर में गोलता बढ़ा देंगे, इब्नतुन हमारा बन जाएगा। इब्नतुन या डाटर यानी बेटी के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग नोटबुक साथ में रखिए, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। अगर आप अरबिक ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये सब ऐसे अल्फाज हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट डाउन करें और बाद में उसको मेमोराइज़ कर लें, उसको महफूज कर लें अपने जहन में, ताकि आप बाद में अरबिक ज़ुबान को बोल सकें। क्योंकि जब हम लोग अरबिक ज़ुबान सीख रहे हैं तो आप उसके लिए एक कॉपी रखिए और जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो आपको नए अल्फाज लगें, उसको आप नोट डाउन करते हुए चलें। अब तो पहली अलामत यानी अलामत तानीस की हमारी क्या है? गोलता है, जो लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाई जाती है। अब हम दूसरा देखेंगे, पहली तो गोलता हुई, अब दूसरा आगे कुछ और इसकी एग्ज़ाम्पल हैं, इसको भी हम देखते हैं। जैसे मलिकुन, मलिक अरबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है, ए किंग यानी राजा के लिए, बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको अगर हम मुअन्नस फेमिनिन बनाएंगे तो अरबिक ज़ुबान में तो आखिर में गोलता बढ़ा दिया, यानी मलिकतुन, ए हमारा यानी क्वीन यानी महारानी के लिए इस्तेमाल हो गया। अब देखिए इंग्लिश ज़ुबान में इसके लिए मुस्तकिल अलग वर्ड ही आया है, जैसे मलिकुन के लिए किंग, और अगर मलिका है तो उसके लिए हम क्वीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लफ्ज़ देखिए, अमीर, अमीर प्रिंस यानी शहज़ादे के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको अगर हम मुअन्नस बनाएंगे तो आखिर में गोलता यानी ताए मुदव्वरा या ताए मरबूता बढ़ा देंगे तो हमारा अमीरतुन हो जाएगा, जिसके लिए इंग्लिश ज़ुबान में अलग थोड़ा सा कुछ इजाफा करके इसको फेमिनिन बनाते हैं, यानी प्रिंसेस। अब देखेंगे तबीबुन, बहुत अच्छा लफ्ज़ है, तबीब डॉक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वो डॉक्टर मेल है तो उसको हम तबीबुन कहेंगे, लेकिन अगर फीमेल डॉक्टर है तो उसके लिए तबीबतुन का लफ्ज़ यानी तबीबतुन आखिर में गोलता बढ़ाते हैं। और आप देखेंगे इंग्लिश ज़ुबान में दोनों के लिए डॉक्टर ही इस्तेमाल होता है। अब आगे हम देखते हैं, इससे पहले हमारी जितनी मिसालें थी सब हमारी नाउन यानी इस्म यानी संज्ञा की थी। अब हम आगे देखेंगे कुछ हमारे मौसूफ यानी विशेषण हैं, जो एडजेक्टिव जिनको कहते हैं, उनको भी जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो वही पहला वाला कायदा यानी लफ्ज़ के आखिर में गोलता को बढ़ा देंगे। अब इसकी मिसाल देखते हैं, जैसे कदीमुन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड। अब इसको जब हम मुअन्नस बनाएंगे, फेमिनिन बनाएंगे तो आखिर में लिख देंगे कदीमतुन। दूसरा है जदीदुन, जदीदुन माने होता है न्यू यानी नया। अब इसको जब हम फेमिनिन बनाएंगे तो जदीदतुन कह देंगे। इसी तरह हाजिरुन, हाजिरुन
जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट यानी मौजूद होना, अवेलेबल यानी उपलब्ध होना। अब इसको जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो हम कह देंगे हाजिरतुन यानी मुअन्नस के लिए। जैसे अल बिन्तु हाजिरतुन, क्योंकि बिन्तु फेमिनिन है तो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम हाजिरतुन का इस्तेमाल करेंगे। अब गायब, गायब माने होता है एब्सेंट, जो मौजूद ना हो, जो उपस्थित ना हो, उसके लिए गायबुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबिक ज़ुबान में। अब इसको जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो कह देंगे गाइबतुन, यानी आखिर में गोलता को बढ़ा देंगे। अब कुछ एडिशनल इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो गोलता है, जब हम स्पोकन इंग्लिश यानी आपस में अरबिक ज़ुबान की जब गुफ्तगू करते हैं तो गोलता को उमूमन नहीं बोलते, क्योंकि गोलता बोल चाल में हमें हमारी ज़ुबान पे सकील यानी भारी लगता है। जैसे तबीबतुन है, तबीबतुन, लेकिन आपस बोलचाल में हम तबीबतुन कह के नहीं बुलाएंगे बल्कि तबीबा, तबीबा। यानी जो गोलता है, जब इसको हम स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग अरबिक में, अरबिक ज़ुबान जब हम बोलेंगे तो ये हमारी गोलता हा में बदल जाती है। यानी तबीबतुन ना कह के हम कहेंगे तबीबा। हकीबतुन जो हमारे बैग के लिए इस्तेमाल होता है, हम हकीबतुन की जगह जब इसको हम स्पोकन में लाएंगे, जब इसका हम तकल्लुम करेंगे तो हम कहेंगे हकीबा। इसी के साथ आगे हम देखते हैं एक्सेप्शनल में कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे इस्म हैं, कुछ ऐसी संज्ञा हैं जिनके आखिर में गोलता मौजूद है लेकिन वो हकीकत में मुज़क्कर हैं यानी मैस्कुलिन है। तो हर एक ज़ुबान में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल होता है। जैसा कि तलहा आखिर में गोलता है लेकिन तलहा एक मुज़क्कर का नाम है। इसके साथ जब हम वर्ब का सेगा लाएंगे तो मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमें कुछ याद रखना, जो एक्सेप्शनल वाली मिसाल होती हैं उनको हमको जहन में रखना होता है। जैसे तलहा, इसी तरह तरफा, ये भी नाम है, और हुज़ैफ़ा, ये भी यानी जो मेल जेंडर हैं उनका नाम रखा जाता है, हुज़ैफ़ा, तरफा, तलहा। इसी तरह खलीफ़ा, खलीफ़ा जब खिलाफत 1920 से पहले जब खिलाफत का दौर था तो जो बादशाह होता था, जो उस दौर का किंग होता था, उसको खलीफा की उपाधि यानी खलीफा का लक़ब दिया जाता था। तो खलीफा ये जो है यानी मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिर में गोलता है लेकिन फिर भी ये मुज़क्कर है। तो ये कुछ हमारा एक्सेप्शनल में आता है। आगे हम देखेंगे, एक तो अलामत हमारी थी कि हम गोलता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी अलामत तानीस यानी मुअन्नस बनाने की दूसरी अलामत है कि हम आखिर में अलिफ मकसूरा लाते हैं। मकसूरा माने होता है छोटा, छोटा अलिफ। अब ये हमारा छोटा अलिफ कभी शक्लों में मौजूद होता है, कभी ये या की शक्ल में होता है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करेंगे यानी प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ करेंगे, जब इसको हम बोलेंगे तो ये अलिफ मकसूरा की तरह इसका साउंड आता है। जैसे पहला लिखा हुआ है शकवा, शकवा, आखिर में या है लेकिन फिर भी जब इसका हम साउंड निकालेंगे तो हम कहेंगे शकवा, शकवा, यानी थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम अलिफ मकसूरा यानी लिटिल मिनिएचर ऑफ अलिफ इंग्लिश ज़ुबान में कहते हैं, लिटिल मिनिएचर ऑफ अलिफ। शकवा के लिए इंग्लिश ज़ुबान में कंप्लेंट, यानी जब हम किसी से कोई शिकायत करते हैं तो उसके लिए अरबिक में शकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शिकायत के माने में, और इंग्लिश में हमारा ये आता है कंप्लेंट।
इसी तरह एक लफ्ज़ है नजवा, नजवा, वाव के बाद या है, लेकिन ये हमारा अलिफ मकसूरा की शक्ल में है। उसकी शक्ल इसमें लफ्ज़न नहीं मौजूद है, लेकिन मानन मौजूद है, क्योंकि ये कभी अलिफ की शक्ल में होता है, कभी या की शक्ल में, जैसा कि नीचे कहा गया है। तो नजवा, नजवा किसको कहते हैं? सीक्रेट कन्वर्सेशन, यानी जब हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कानाफूसी के साथ, यानी सीक्रेट यानी पोशीदगी के साथ बंद कमरे में करते हैं, तो उसके लिए अरबिक ज़ुबान में एक लफ्ज़ आता है नजवा। ये आखिर में हमारा अलिफ मकसूरा है। अब अलिफ मकसूरा को देख करके हम ये कह सकते हैं ये हमारा मुअन्नस है, इसलिए जब हम वर्ब लाएंगे तो उसमें मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करेंगे। तीसरा हमारा लिखा है अफ़आ, अफ़आ, अफ़आ यानी सरपेंट, सरपेंट कहते हैं सांप के लिए। सांप की एक किस्म है सरपेंट, इसको अरबिक ज़ुबान में अफ़आ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा मुअन्नस है। आखिर में बोलता नहीं है, लेकिन अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा भी मुअन्नस होने की अलामत है, उसका एक संकेत है, उसकी एक पहचान है, आइडेंटिटी है। आगे देखेंगे दुनिया। दुनिया में अलिफ मकसूरा लफ्ज़न भी मौजूद है, आखिर में अलिफ है। इससे पहले की तीनों मिसाल में अलिफ मकसूरा मानन मौजूद था, क्योंकि आखिर में या है, लेकिन उसका साउंड हमारा अलिफ मकसूरा का आ रहा था। तो दुनिया, दुनिया माने वर्ल्ड, संसार, ये भी हमारा अरबिक ज़ुबान का मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन नहीं, फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस का सेगा है। तो ये दो शक्ल में आता है, कभी अलिफ का साउंड आता है और उसके आखिर में या मौजूद होती है, और कभी उसके आखिर में अलिफ भी मौजूद होता है। हमने इससे पहले दो अलामत सीखी। पहली अलामत ताए मुदव्वरा यानी गोलता वाली थी। उसके बाद दूसरी अलामत आपकी थी अलिफ मकसूरा यानी छोटे अलिफ की। अलामत तानीस की दो अलामतें हो गई। अब हम तीसरी अलामत को देखेंगे, जिसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, यानी प्रोलॉन्ग्ड अलिफ। ऐसा अलिफ जिसको हम ज़्यादा खींच करके पढ़ते हैं, वो भी हमारी अलामत तानीस यानी फेमिनिन जेंडर के अंदर आती है। तो जैसे सहरा, ये हमारा इस्म है, ये हमारा इस्म जो है ये मुअन्नस है, फेमिनिन है, क्योंकि उसके आखिर में अलिफ ममदूदा लगा हुआ है, यानी अलिफ भी होता है, उसके बाद हमज़ा का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो सहरा, सहरा यानी जंगल के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इंग्लिश ज़ुबान में डिज़र्ट, डिज़र्ट का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ होता है। दूसरा लफ्ज़ आप देखेंगे बबगाव, बबगाव, बबगाऊ जो आखिर में है, ये भी अलिफ ममदूदा है, जो कि मुअन्नस, जो हमारा कलीमा है, जो हमारा लफ्ज़ है, जो हमारा इस्म है, ये भी हमारा मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में अलामत तानीस अलिफ ममदूदा लगा हुआ है। तो दो किस्म अलिफ की हुई, एक अलिफ मकसूरा और दूसरा अलिफ ममदूदा। इसके लिए इंग्लिश में पैरेट, पैरेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये नकीरा है, इसलिए शुरू में इंग्लिश के आर्टिकल में से ए का इस्तेमाल किया, यानी अ पैरेट। तीसरा लफ्ज़ आप देखेंगे, ये भी इस्म है हसनाऊ, आखिर में ताए मुदव्वरा लगा हुआ है, ताए मुदव्वरा नहीं, अलिफ ममदूदा लगा हुआ है, यानी लंबा अलिफ, इसलिए इसको हम मुअन्नस कहेंगे। यानी अ ब्यूटीफुल लेडी, किसी खूबसूरत लेडी यानी लड़की के लिए, फीमेल के लिए अरबिक ज़ुबान में हसनाऊ अलिफ ममदूदा के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि मुअन्नस होता है।
आगे देखेंगे हमराऊ, ये रंग के लिए आता है। रेड कलर यानी लाल कलर के रंग के लिए हम अरबिक ज़ुबान में हमराऊ अलिफ ममदूदा के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जितने भी हमारे रंग हैं, सफ़राऊ, सौदाऊ, बैज़ाऊ, जितने हैं सब इसी वज़न पे आते हैं और आखिर में, सबके आखिर में अलिफ ममदूदा लगता है। तो हमारा यहाँ हमराऊ का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश ज़ुबान में रेड यानी लाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारा फेमिनिन है। तो यही कहा गया है कि अ नाउन डेट इज़ प्रोनाउंस्ड विथ अ प्रोलॉन्ग्ड अलिफ साउंड एट द एंड, उसको हम क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा। ये भी हमारी फेमिनिन जेंडर की एक पहचान है। अब हम आगे स्लाइड में चलते हैं। हमने अलामत तानीस जो 3 बहुत मशहूर हैं उनके बारे में पढ़ लिया। उसमें से एक ताए मुदव्वरा जिसको हम पहचान सकते हैं देख करके, यानी मुज़क्कर के आखिर में ताए मुदव्वरा ने गोलता लगा करके उसको हम मुअन्नस बना देते हैं। दूसरा है कि अलिफ मकसूरा अगर लगा होता है या की शक्ल में या अलिफ ही मौजूद होता है वो भी हमारा मुअन्नस होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि हमारा जो अलिफ ममदूदा है, जो अलिफ और आखिर में हमज़ा के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमारी अलामत तानीस की तीसरी किस्म है। अब हमारे कुछ ऐसे इस्म हैं जिनमें अलामत तानीस इन तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं लगी रहती, फिर भी हम उनको मुअन्नस के कैटेगरी में रखते हैं। उसमें से एक है फीमेल ह्यूमन पर्सनालिटीज़, यानी कुछ ऐसी इंसानी शख्सियत है, व्यक्तित्व है जो कि फीमेल यानी महिलाओं के लिए, यानी हमारी जो मुअन्नस है उसके लिए उनको मुतय्यन किया गया है, उनको तय किया गया है कि ये मुअन्नस की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आप मिसाल से समझिए, पहला लफ्ज़ है उम्मुन। उम्मुन ये माँ के लिए यानी माता के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबिक ज़ुबान में। उम्मुन में आप देखेंगे ना तो गोलता है, ना तो अलिफ मकसूरा है और ना ही अलिफ ममदूदा है, फिर भी ये उम्मुन यानी ये मदर के लिए, इंग्लिश में ये मदर, इसके लिए मदर का लफ्ज़ आता है और अरबिक में माँ के लिए उम्मुन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मुन हमारा मुअन्नस है क्योंकि ये फीमेल ह्यूमन पर्सनालिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह आप देखेंगे बिंतुन है। बिंतुन शक्लों में तीनों अलामतों में से कोई नहीं मौजूद है। एक गर्ल और डॉटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारा मुअन्नस है। उख्तुन बहन यानी सिस्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे आखिर में तीनों अलामत में से कोई अलामत नहीं है, फिर भी ये हमारा मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर में शामिल है। दूसरा ज़ौजुन। ज़ौजुन हमारा वाइफ यानी बीवी के लिए, पत्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे तीनों अलामतों में से कोई अलामत इसमें नहीं है। आखिर में देखेंगे अरूसुन। अरूस ये दुल्हन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके लिए इंग्लिश में ब्राइड यानी दुल्हन के लिए ब्राइड और दूल्हा के लिए ब्राइड ग्रूम, आखिर में ग्रूम बढ़ा देते हैं इंग्लिश लफ्ज़ में, जो दूल्हा के लिए इस्तेमाल होता है। अरूसुन। आगे हम देखेंगे खादिमुन। खादिम ये भी हमारा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे खादिम कहीं कहीं मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसमें अपवाद है। कहीं कहीं मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए खादिमा, आखिर में गोलता ले आते हैं।
हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। अब कुछ ऐसे फीमेल प्रॉपर नाउन हैं जिसमें तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं पाई जाती, फिर भी हम इनको फीमेल के कैटेगरी में रखते हैं, यानी मुअन्नस शुमार करते हैं, फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जैसे ज़ैनब, ज़ैनब में तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं है, ये एक प्रॉपर नेम भी है, ये हमारा मुअन्नस है। इसी तरह मरियम, मरियम भी हमारा मुअन्नस है, हालांकि इसमें तीनों अलामतों में से कोई अलामत मौजूद नहीं है। अब आगे हम देखेंगे, हमारा आता है हिंदुन। अहले अरब के नज़दीक यानी इस्लाम से पहले भी ख्वातीन का नाम हिंदुन रखा जाता था। इसमें अलामत तानीस नहीं है, फिर भी ये मुअन्नस है। तो यानी कुल मिलाकर के हमारे सामने नतीजा निकला कि सम नाउन्स कुछ ऐसे इसम हैं जो कि यूजेस के ज़रिए वो फेमिनिन है, हालांकि उसमें कोई अलामत नहीं पाई जाती। दे डोंट हैव एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड फेमिनिन सैम्बल। सैम्बल बताए थे 3 है, उसमें से एक गोलता थी, एक अलिफ मकसूरा और उसके बाद अलिफ ममदूदा। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ हमारे कंट्री हैं, कुछ हमारे मुल्क हैं, कुछ देश के नाम हैं जो भी मुअन्नस कुछ नहीं बल्कि अक्सर जितने कंट्री के नेम होते हैं, द नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो कंट्री के आपके नेम आएंगे, इसी तरह सिटी, इसी तरह जगह, इसी तरह ट्राइब यानी कबीले के नाम, ये भी अरबिक ज़ुबान में मुअन्नस शुमार किए जाते हैं। कुछ मिसालें आपको सिर्फ दी गई हैं, इसके ऊपर आप दूसरे को भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ईरान, अलामत तानीस, तानीस के जो सैम्बल हैं तीनों में से कोई सैम्बल नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी ये कंट्री का नाम है, इसलिए हमारा मुअन्नस है। इसी तरह बगदाद, ये भी इराक़ का शहर है, इराक़ की राजधानी यानी कैपिटल है, आसिमा है, ये भी हमारा मुअन्नसी इस्तेमाल होगा। नजफ़, ये भी एक सिटी शहर का नाम है, ये भी हमारा मुअन्नसी इस्तेमाल होगा। कुरैश, कुरैश एक कबीला है अरब कंट्री में, इसमें कोई अलामत तानीस मौजूद नहीं है, फिर भी ये हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में आएगा। अब आगे हम इसमें कुछ दिलचस्प बातें देखते हैं। हमने इससे पहले अलामत तानीस 3 पढ़ ली, उसके बाद कुछ ऐसे अपवाद पढ़े कि जो कंट्री के नेम हैं, शहर के नेम हैं, ये सब भी मुअन्नस होते हैं। इसी तरह फेमिनिन पर्सनालिटी है, इसी तरह फेमिनिन के जो नेम हैं ये सब हमारे मुअन्नस शुमार किए जाते हैं। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग इसको अच्छे से महफूज रखिए, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि जब अरबिक में खाली जगह भरने के लिए आता है तो मुज़क्कर और मुअन्नस जो हमारे सेगे हैं, सेगे अलग अलग सेगों को फ़ाइल के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए, खाली जगह पुर करने के लिए कहा जाता है। अगर आप इस चीज़ को जानेंगे कौन सा मुअन्नस है, कौन सा मुज़क्कर है और कौन कौन मुअन्नस की कैटेगरी में आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इंसान का जो बदन है, उसके बहुत से पार्ट हैं। जितने पार्ट ह्यूमन की बॉडी में डबल हैं या उससे ज़्यादा हैं, जो सिंगल हैं उसकी बात नहीं हो रही, जो डबल हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो भी अरबिक ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अगर इसको आप जहन में रख लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक आपकी अरबिक ज़ुबान में मुज़क्कर मुअन्नस में बहुत सारी दस्तरत हासिल हो जाएगी। क्योंकि जो खाली जगह भरने के लिए या आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें यही सब अल्फाज आते हैं। उसके बाद उसके मुताबिक आपको सेगा यानी वर्ब के जो हमारे फ़ेल हैं, फ़ेल के सेगे को भरने के लिए कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि इंसान की बॉडी के जितने पार्ट 2 या उससे ज़्यादा हैं वो अरबिक ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी फेमिनिन जेंडर में शुमार किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, एक हमारा आता है यदुन। यदुन ये हाथ यानी हैंड के लिए इस्तेमाल होता है, हाथ भी हमारा 2 है। रिजलुन, रिजलुन यानी लेग यानी पैर के लिए, पैर भी हमारा 2 है, इसलिए ये भी मुअन्नस होगा। आइनुन ये आँख के लिए इस्तेमाल होता है। सारे अल्फाज को आप लोग अपने कापी में नोट डाउन कर लें। आइनुन, आइनुन ये आँख के लिए, आँख भी हमारी 2 है, इसलिए ये भी मुअन्नस। फूट यानी कदम, कदम फूट के लिए, पाँव के लिए, क्योंकि ये भी हमारे 2 हैं इसलिए ये भी मुअन्नस होगा। उज़ुनुन यानी ईयर यानी कान के लिए, उज़ुनुन का लफ्ज़ अरबिक में आता है, ये भी हमारा मुअन्नस है क्योंकि 2 है। साकुन यानी शैंक यानी पिडली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारी 2 होती है, दोनों टांगों में अलग अलग है, इसलिए ये भी हमारी मुअन्नस है। हालांकि अलामत तानीस कहीं नहीं मौजूद है, लेकिन क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा की कैटेगरी में है, अहले अरब इनको मुअन्नस की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए हमको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं की ज़ुबान है, जिस तरह वो उसका इस्तेमाल करेंगे उसी तरह हम भी उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होते हैं। इसी तरह है कतिफुन, कंधा यानी शोल्डर। शोल्डर भी हमारा 2 है, एक इधर है एक इधर है, 2 है, इसलिए कतिफुन जो है ये मुअन्नस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह इसबाउन यानी फिंगर, फिंगर हमारी 2 से ज़्यादा है लेकिन एक नहीं है, इसलिए ये भी मुअन्नस के कैटेगरी में शुमार की जाएगी। ज़राउन यानी आर्म यानी जो हमारी बाँह है, भुजा है, वो भी उसके लिए ज़राउन का लफ्ज़ आता है, ये भी हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में है क्योंकि 2 है। फ़खिज़ुन अरबिक का एक लफ्ज़ है जो कि थिंग यानी जांग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में थिंग का लफ्ज़ आता है, तो इसके लिए फ़खिज़ुन ये भी हमारा मुअन्नस है क्योंकि जांग यानी रान हमारी 2 होती है। सिन्नुन यानी टीथ, दांत तो हमारे कई हैं, किसी के 28 हैं, किसी के 32 तक भी होते हैं, 22, मिनिमम तो 28 तो होते ही हैं। क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हैं इसलिए भी हमारा सिन्नुन मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा। अक़िबुन ये हमारा हील यानी एड़ी के लिए, एड़ी भी हमारी 2 है, इसलिए ये भी 2, इसलिए हमारी ये फेमिनिन की कैटेगरी में आएगी। वरिकुन ये हमारा पिछला हिस्सा, ये भी 2 पार्ट में है, इसके लिए हिप इस्तेमाल होता है यानी जांग, वो यानी कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके लिए इंग्लिश में हिप इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश में वरिकुन का लफ्ज़ आता है यानी मक़ाद, ये भी हमारा 2 पार्ट में है, इसलिए ये भी हमारा मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। कफ़ुन यानी हथेली, पाम, हथेली भी हमारी 2 है, इसलिए ये भी मुअन्नस की कैटेगरी में आएगी। अब जो हमारे बॉडी पार्ट थे इसको हमने समझ लिए कि जो भी हमारे बॉडी के हिस्से हैं वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा की शक्ल में हैं तो हमारे अरबिक ज़ुबान में उसके लिए जो लफ्ज़ आएगा वो मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। अब हम कुछ मिसलेनियस नाउन्स यानी अलग अलग डिफरेंस नाउन्स हैं जिनको अहले अरब मुअन्नस की कैटेगरी में रख करके इस्तेमाल करते हैं, उनको मुअन्नस मानते हैं,
इनके साथ जो वर्ब लाते हैं वो हम जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म हैं उसमें वो मुअन्नस का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इनको भी हम ज़हन नशीन कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। और ऐसे अल्फाज हैं जो कि डेली लाइफ में आप इनको सुनते भी हैं, देखते भी हैं। उसमें से एक आपका है अर्जुन। अर्जुन अर्थ यानी भूमि यानी ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन देखने में अलामत तानीस में से कोई नहीं लगी है, लेकिन हम इसको मुअन्नस की कैटेगरी में रखते हैं। आगे रीहुन यानी विंड यानी हवा के लिए रीहुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अलामत तानीस कोई नहीं है, फिर भी ये उसी यानी फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में रीहुन का लफ्ज़ हमारा आता है। शमसुन, शमसुन माने सूरज है। सूरज के लिए इंग्लिश में सन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शमसुन हमारा मुअन्नस सेमाई है, यानी इनको अहले अरब मुअन्नस की कैटेगरी में रखते हैं। कुरान करीम में है इज़ा शम्सु कुव्विरत। कुव्विरत ये हमारा सेगा मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। तो कुव्विरत यानी ता के साथ इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि शमसुन हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में आता है। ये हमारे कुरान करीम में भी मौजूद है। नारुन, नारुन माने फायर यानी आग के लिए, ये भी मुअन्नस ही की कैटेगरी में आता है। आप देखेंगे दारुन, अलामत तानीस कोई नहीं मौजूद है। हाउस यानी घर के लिए होम का लफ्ज़ इंग्लिश में आता है और अरबिक में दारुन, ये भी हमारा मुअन्नस है। इसी तरह नफ्सुन, नफ्सुन ये हमारी आत्मा यानी सोल, इंग्लिश में कहते हैं सोल, उर्दू में कहेंगे रूह। इसके लिए नफ्सुन का लफ्ज़ आता है। नफ्सुन भी हमारा मुअन्नस का सेगा है। कासुन, कासुन हमारा गिलास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में आता है। हरबुन, हरबुन यानी जंग यानी लड़ाई के लिए, युद्ध, युद्ध इसके लिए हिंदी में युद्ध का लफ्ज़ आता है, उसके लिए इंग्लिश में हरबुन, ये भी हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में है। यानी अलग अलग नाउन्स हैं। इसकी एक लिस्ट है जो बहुत मशहूर है, इसको मैंने टेबल के शक्ल में जमा करके आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। हरबुन वार के लिए, ये भी हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में आएगा। समाउन, समाउन स्काई यानी आसमान के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये भी हमारा मुअन्नस है। सूकुन, सूकुन ये मार्केट यानी बाज़ार के लिए इस्तेमाल होता है। बज़ाहिर इसमें कोई अलामत तानीस नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस की कैटेगरी में आएगा। बिरुन, बिरुन यानी वेल, वेल का मतलब कुआं। पहले ज़माने में कुआं, अब भी कुआं बहुत जगह मौजूद है, तो उसके लिए अरबिक में बिरुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में आता है। आप देखेंगे खमरुन, खमरुन वाइन यानी शराब के लिए इस्तेमाल होता है। अहले अरब में इस्लाम आने से पहले शराब का बहुत ज़्यादा चलन था। अहले अरब अपने अशार में भी खम्र यानी शराब का तज़किरा बहुत ज़्यादा करते हैं, मिलता है। ये भी मुअन्नस का सेगा इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खमरुन हमारा जो वाइन, ये भी मुअन्नस की कैटेगरी में आता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब हम एक मरतबा अपनी क्लास को रिवीज़न करते हैं कि आज हमने इसम की जो दो किस्में हैं नाउन की,
मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने मुअन्नस की 3 अलामत को पढ़ा। एक ताए मुदव्वरा यानी गोलता की शक्ल में। नंबर 2 हमारी है अलिफ मकसूरा, जो आखिर में या होती है, या कभी कभी अलिफ भी मौजूद होता है। नंबर 3 पे अलिफ ममदूदा। कौन सा अलिफ? अलिफ ममदूदा, यानी जिसको खींच के पढ़ा जाता है। आखिर में अलिफ आएगा, अलिफ के बाद हमज़ा आएगा। जैसे हमराउ, बैज़ाउ, ये सब। इसी के साथ जो शकवा अलिफ मकसूरा है, हमराउ बैज़ाउ ये अलिफ ममदूदा है। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक करते जाएं। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्तों अहबाब में भी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोगों को पीडीएफ जो पढ़ाई जाती है, पीडीएफ वहाँ भेज दी जाती है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ जिन्होंने, ये तो हमारी चौथी क्लास थी, तीनों क्लास जिन्होंने नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहाँ से आप पहुँच करके पहले की सारी क्लासें आप देख लें, क्योंकि क्लास सिस्टम से बॉटम टू अप वाले अप्रोच के साथ चल रही है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहली वाली क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद जब इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बस, मअस्सलामा, इलल लिक़ा।